So next is a question number 8. A child staying in a coastal region tests the drinking water and also the seawater with his tester. He finds that the compass needle deflect more in the case of seawater. Can you explain the reason? सो सपोज देर इज़ ए चाइल्ड जो कोस्टल रीजन के आसपास रहता है यानी सी साइड के सामने रहता है। तो उसने क्या किया, उसने फर्स्ट लिया ड्रिंकिंग वाटर एंड सेकंड ही टुक सी वाटर। वो टेस्टर के हेल्प से क्या कर रहा था, वो टेस्ट कर रहा था। फर्स्ट इज़ योर ड्रिंकिंग वाटर, सेकंड इज़ योर सी वाटर। तो उसने क्या देखा, जब कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो रहा था, दैट इज़ उसमें मूवमेंट शो हो रहा था मोर इन द केस ऑफ सी वाटर। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। सो ये देखो बहुत ही सिंपल, इफ यू गाइस नो द कॉन्सेप्ट देन यू कैन easily आंसर दिस. So what you can write, drinking water is chemically treated and purified by removing various impurities and salts from it, while the seawater contains lots of mineral salts. Therefore, seawater produce more ions, that is more electric charges as compared to drinking water, and the child sees more deflection in magnetic needle in case of seawater. Now, if we do a comparison between seawater and your normal drinking water, we all know that seawater contains a huge amount of salt, and that is why seawater क्या है, seawater is a better conductor of electricity. उससे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो easily पास होगा, since इसमें जो सॉल्ट का अमाउंट है वो ज़्यादा है। तो लास्ट लाइन में देखो वही लिखा हुआ है, एंड द चाइल्ड सीज मोर डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल इन केस ऑफ सी वाटर. सो आई होप इट्स क्लियर. So next is a question number 9. Is it safe for the electrician to carry out electrical repairs outdoors during heavy downpour? Explain. So ये सारे questions कैसे हैं, concept based question है. If you know the concept then you can easily answer any kind of question that comes in your exam. So यहाँ पे आपको term दिख रहा होगा heavy downpour. So by heavy downpour we mean heavy बारिश होना, बहुत ज़्यादा बारिश होना, that is rainfall होना. So now you have to tell it whether it is safe for the electrician to carry out any electrical related things during the heavy rainfall. That is कोई भी इलेक्ट्रिकल रिपेयरमेंट हो रहा है, सपोज लाइक इलेक्ट्रिशियन है वो आया है बट उस टाइम में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है. सो वेदर इट इज़ सेफ और नॉट, इफ़ नो देन यू हैव टू एक्सप्लेन योर आंसर. नाउ वी ऑल नो दैट वाटर इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. So since water is a good conductor of electricity, there are high chances of getting electric shock. क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट उससे इजीली पास हो जाता है एंड द इलेक्ट्रिशियन में गेट इलेक्ट्रिक शॉक. सो आप आंसर देखो कैसे लिखोगे. नो, इट इज़ वेरी रिस्की एंड अनसेफ टू कैरी आउट इलेक्ट्रिक रिपेयर्स आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर. फर्स्ट पार्ट आप एग्जैक्टली क्वेश्चन की तरह लिखोगे. सेकेंड पार्ट इज इम्पॉर्टेंट. वाटर when impure is a good conductor of electricity and there are chances of getting electric shock, and that is the reason why it is very unsafe for the electrician to carry out any electrical related things during heavy rainfall. So next is the question number 10. Pahili had heard that rainwater is as good as distilled water. So she collected some rainwater in a clean glass tumbler and tested it using a tester. To her surprise, she found out that the compass needle showed deflection. What could be the reasons? So Pahil ने क्या किया? She collected some rainwater in a clean glass tumbler. देन उसने क्या किया, शी ऑफन हियर्स जो रेन वाटर है इज एज गुड एज डिस्टिल वाटर. सो बाय द लाइन एज गुड एज वी आर एक्चुअली रेफरिंग इट टू द conducting properties, whether it is a good conductor or whether it is a poor conductor. Now in the case of distilled water, we all know that distilled water does not contain any dissolved salt, and that is why distilled water is a poor conductor of electricity, that is इलेक्ट्रिसिटी इससे पास नहीं होता बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी सॉल्ट. सो यहाँ पे देखो सिमिलर काइंड ऑफ ही चीज़ यहाँ पे बोला है. जैसे पहले ने ऐसा ऑफन सुना है कि जो रेन वाटर है वो भी प्योर वाटर है जस्ट लाइक डिस्टिल वाटर. बट टू हर शॉक उसने क्या देखा, जो कंपास नीडल है उस पर डिफ्लेक्शन शो हुआ, दैट इज़ उस पर थोड़ा सा मूवमेंट हुआ. सो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है दैट यू हैव टू एक्सप्लेन. सो वट यू विल राइट, एयर इन आवर सराउंडिंग्स contains gases, suspended dust particles and pollutant. These particles gets dissolved in rainwater and make it good conducting medium of electricity.
So, although rainwater is pure water, which is an insulator, and by insulator we mean it does not allow any electric current to pass through it. But हमारे जो surroundings में जो air present है, that is the air in our surroundings contains gases, suspended dust particles, and pollutants like sulfur dioxide, nitrogen dioxide, and it makes the rain acidic in nature, which is a good conductor of electricity, and that is why the compass needle shows deflection. So next is a question number 11. Prepare a list of objects around you that are electroplated. यानी आपको क्या करना है, आपके सराउंडिंग्स में जो जो ऑब्जेक्ट है आपको उसको नोट डाउन करना है जो इलेक्ट्रोप्लेटेड है. इलेक्ट्रोप्लेटेड comes from the term electroplating. So electroplating is a process where जो thin layer of desired metal उसको deposit किया जाता है over a metal object with the help of electric current, that is your electroplating. तो आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है of some objects जो electroplated है. Cold drink cans are tin plated. Then artificial jewelry items are silver or gold plated. Car bumpers and cycle handles are chromium plated. Metal doors, door handles are zinc plated. So एक often question जो mind में आता है that why is electroplating done? Electroplating is mainly done for avoiding corrosion of metals and mainly it is done for decorative purposes. So next is a question number 12. The process that you saw in activity 14.7 is used for purification of copper. A thin plate of pure copper and a thick rod of impure copper are used as electrode. Copper from impure rod is sought to be transferred to the thin copper plate. Which electrode should be attached to the positive terminal of the battery and why? सो आपने एन टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी 14.7 में देखा था दैट हाउ प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर इज डन. सो देखो इस एक्टिविटी में क्या हुआ था, एक थिन प्लेट लिया गया था प्योर कॉपर का एंड एक थिक प्लेट लिया गया था इम्प्योर कॉपर का एंड दे वेर यूज्ड एज इलेक्ट्रोड. उसके बाद देखो क्या हुआ था, जो इम्प्योर कॉपर हमने लिया, थिक रॉड ऑफ इम्प्योर कॉपर, उससे जो कॉपर है वो धीरे धीरे ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गया टू द थिन कॉपर प्लेट. सो नाउ यू हैव टू टेल कि कौन सा इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में अटैच करना चाहिए, वेदर थिन प्लेट ऑफ प्योर कॉपर और थिक प्लेट ऑफ इम्प्योर कॉपर. सो नाउ लेट्स सी द आंसर. Impure copper plate should be connected to positive terminal. Pure copper plate should be connected to negative terminal of electrode as copper ions are positively charged and will attract to negative electrode terminal. जो थिक रॉड है इम्प्योर कॉपर का, इट शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड जो प्योर कॉपर प्लेट है इट शुड बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो इसके पीछे देखो कॉन्सेप्ट क्या है, वी नो दैट जो कॉपर आयंस है, कॉपर आयंस क्या होते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज एंड वो किसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टर्मिनल. सो द कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली वेरी सिंपल. वी नो दैट जो कॉपर आयंस है, कॉपर आयंस आर पॉजिटिवली चार्ज एंड दैट इज़ वाई इट गेट्स अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव साइड. तो देखो ये आपको एन टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, मैं जस्ट अभी आपको एक शॉर्ट समरी टाइप बोलूँगी, देन विल लुक इन द डायग्राम. डायग्राम में आपको क्या गिवन है, देखो एक बैटरी गिवन है, देन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन गिवन है. तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका पॉजिटिव साइड है वो धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लग जाता है टू द नेगेटिव साइड. तो हमारे पॉजिटिव साइड में क्या है, आपका थिक रॉड है इम्प्योर कॉपर का एंड आपका नेगेटिव साइड में क्या है, प्योर कॉपर है. तो जब भी देखो बैटरी ऑन हो जाता है तब क्या होता है, हमें पता है जो कॉपर सल्फेट है वो पॉजिटिव आयन बनाना शुरू कर देता है एंड वो धीरे धीरे कहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है, टू द नेगेटिव साइड. ये हम लोग और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे डायग्राम के थ्रू में, यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक शॉर्ट समरी बता रही हूँ. तो उसके बाद देखो क्या प्रोसेस होता है, ये जो पॉजिटिव आयन है वो धीरे धीरे नेगेटिव साइड में जाके चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं एंड हमें एट द एंड जो प्योर कॉपर है वो हमें ऑब्टेन्ड हो जाता है एंड दैट इज़ नथिंग बट द एक्सपेरिमेंट जो आपको एन टेक्स्ट बुक में गिवन है. नाउ लेट्स सी द डायग्राम. सो एज यू कैन सी दिस इज़ द डायग्राम. ये क्या है, आपका बैटरी है जो मैंने बी से इंडिकेट किया. नाउ ठीक नीचे आपको 2 कॉपर प्लेट दिख रहा होगा, फर्स्ट एंड सेकंड. जो आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहा है ये क्या है, आपका इम्प्योर कॉपर प्लेट है जो मैंने आई से डिनोट किया एंड राइट साइड में क्या है, आपका प्योर कॉपर. ना देखो जो लेफ्ट साइड में वो कहाँ पे कनेक्टेड है, कौन से टर्मिनल पे,
टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, प्लस से डिनोट किया, तो इसको बोला जाता है एनोड, ANODE। एंड जो आपको राइट साइड पे दिख रहा है ये क्या है आपका कनेक्टेड है नेगेटिव साइड में, इसको बोला जाता है कैथोड, CATHODE। एंड यहाँ पे आपको जो सोल्यूशन दिख रहा है ये क्या है आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो देखो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में क्या होता है, दैट इज वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट कॉपर बीइंग पॉजिटिवली चार्ज, इट गेट्स अट्रैक्टेड, इट गेट्स ड्रॉन टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड वो धीरे धीरे उस पर डेपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो सिंस क्या हुआ सोल्यूशन में कॉपर का शॉर्टेज हो गया, तो ये फुलफिल कौन करता है, इम्प्योर कॉपर, जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे अटैच है।